بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع. دراصل بات یہ ہے، قرآن مجید ایک عجیب اور غریب کتاب ہے. اس کے اندر ہزاروں باتیں موجود ہیں، مسائل موجود ہیں، احکامات موجود ہیں. آیت چھوٹی ہوگی لیکن مطلب اور معنی اور تفسیر بہت بڑا ہوگا. اسی لیے حضرات علماء کرام اس بات پر متفق ہیں قرآن مجید کے تفسیر کے تہ کو پہنچنے والا آج تک کوئی نہیں پیدا ہوا. بے شمار مسائل نکلیں گے آپ کو، نکات، مسئلے، مسائل کا ذخیرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہوگا. یہ بات مسلمان جانتا یا نہیں جانتا ہے اللہ بہتر جانے. غیر مسلم کے بعض حضرات اس بات کو ضرور جانتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا. یہودیوں کی ایک جماعت آئی، آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ امیر المومنین، آپ کی مقدس کتاب کو ہم نے پڑھا، بہت پسند آئی، اور اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم لوگ عید مناتے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی لوگ. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور، یہودیوں کی جماعت آ کر کہتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھا. یہودیوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے؟ ان کی مقدس کتاب انجیل تھی، اسے وہ پڑھتے، بائبل تھی، اس کو وہ پڑھتے. ہم نے کبھی آج تک انجیل اٹھا کر نہیں دیکھا، ہم نے کبھی تورات اٹھا کر نہیں دیکھا، ہم نے کبھی زبور اٹھا کر نہیں دیکھا، ہم نے کبھی مہابھارت اور رامائن اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کی کتابوں کا ہم کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور وہ بھی یہی سوچیں گے کہ ہم کو کیا ضرورت پڑی کہ ہم لوگ قرآن مجید پڑھیں. اب قرآن مجید پڑھ کر وہ لوگ مطلب بھی جانتے ہیں، معنی بھی جانتے ہیں، تفسیر بھی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ آسٹریلیا ایک ملک ہے ساری دنیا کے اندر. ایک جماعت، تبلیغی جماعت آسٹریلیا کو گئی تو وہاں کے ایک صاحب نے اس جماعت کے امیر صاحب کو کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جو زندگی میں آپ نے اس جگہ کو نہیں دیکھا ہوگا اور سنا بھی نہیں ہوگا. اب صرف پرمیشن اور اجازت جو تھی وہ صرف امیر صاحب کو تھی. اب امیر صاحب کے ساتھ وہ آسٹریلیا کا ایک باشندہ، وہیں کا رہنے والا ایک مسلمان اس امیر صاحب کو لے کر گیا. چلتے چلتے ایک بہت بڑا جنگل راستے میں ملا. امیر صاحب کو ایک جگہ پر ٹھہرا کر یہ آسٹریلیا کا رہنے والا ایک آدمی گیا، کچھ پیپر لے کر آیا اور اس پہ دستخط امیر صاحب کی بھی کروایا، اور یہ آدمی بھی دستخط کرا کر ایک آفس میں جا کر دے کر ایک اور اندر جانے لگا تو ایک بہت بڑی عمارت نظر آئی. اور عمارت میں کیا تھی کہ بہت سارے لوگ وہاں پر پڑھ رہے تھے. اب وہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ کوئی قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی تفسیر کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اب امیر صاحب نے یہ سوچا کہ شاید یہ مسلمانوں کا مدرسہ ہوگا، مسلمانوں کے مدرسے ہی میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، مسلمانوں کے اسکول میں قرآن مجید کو پڑھایا جاتا ہے. افسوس کہ آج کا دور وہ نہیں ہے صرف مدرسوں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے. ہمارے مسلمان بھی کیسے کیسے اسکول چلاتے ہیں، کیسے کیسے کالج چلاتے ہیں، کیسے کیسی یونیورسٹیاں چلاتے ہیں. اتنے بڑے، اتنے زیادہ سبجیکٹ ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ فن ہوتے ہیں. افسوس کہ کوئی سبجیکٹ اگر نہیں ہوتا تو خدا کی قسم چیلنج کے ساتھ میں کہوں گا کہ وہ قرآن اور حدیث کا سبجیکٹ نہیں ہوتا.
آپ جا کر تحقیق کریں، ریسرچ کر دیکھیں اور اپنے آپ سے مشاہدہ کر دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے اسکول ہوتے ہیں لیکن وہاں پر ایک سبجیکٹ قرآن مجید کا ہو، زیادہ سے زیادہ یا تو قرآن پڑھانے کی طرف توجہ دی جاتی ہے، یا نہیں تو نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، یا نہیں تو یسرنا قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی۔ تو اب وہ آسٹریلیا کا باشندہ اس امیر صاحب کو لے کر گیا، ڈوب کر مرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے گرے ہوئے مسلمان کہ ہم کو ہماری کتاب قرآن مجید خود پڑھنے کا وقت ہم لوگوں کو نہیں ملتا۔ دنیا ہمارے بارے میں، ہمارے قرآن کے بارے میں، ہمارے آقا کے حدیثوں کے بارے میں کتنا ترقی کر کے آگے بڑھی ہے اور کتنا ریسرچ کر رہی ہے، کتنا تحقیق کر رہی ہے، اور قرآن مجید پر انہوں نے جیسے جیسے اپنے دماغ کو لڑایا، اپنے دماغ کو کھپایا، خدا کی قسم وہ لوگ ترقی کرتے گئے، اور قرآن سے ناتا ہمارا جتنا دور ہوا ہم اتنے ہی بزدل اور اتنے ہی گرتے ہوئے چلے گئے ہم لوگ۔ اب امیر صاحب گئے، جا کر دیکھتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، کوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹئی لگائے ہوئے ہیں، بوٹ پہنے ہوئے ہیں، سر پہ کراف ہے، سب کچھ ہے، لیکن سامنے حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہے، انگریزی کتابیں رکھی ہوئی ہے، عربی کتابیں رکھی ہوئی ہے۔ یہ صرف کلاس کے باہر سے دیکھتے ہوئے چلے گئے، پوری اسکول پوری کالج دیکھنے کے بعد واپس آتے ہوئے اس آسٹریلیا کے باشندہ نے امیر صاحب سے پوچھا کہ حضرت بتاؤ آپ نے اس اسکول اس مدرسے کو دیکھ کر کیا نتیجہ نکالا، کیا آپ کو محسوس ہوا؟ تو امیر صاحب نے کہا کہ کچھ نہیں، ہمارے یہاں پر مدرسے ہوتے ہیں تو وہاں پر بچے جھبے پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، ٹئی لگاتے ہیں، یہ ٹوپی پہنتے ہیں اور کچھ امامہ ہوتا ہے، لیکن یہاں کا عجیب مدرسہ ہے کہ یہاں مدرسے میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، لیکن ان کا لباس بھی برابر نہیں، ان کا چہرہ بھی برابر نہیں، ان کے سر پہ ٹوپی اور امامہ بھی نہیں ہے۔ تو آسٹریلیا کے باشندے نے کہا کہ حضرت آپ کیا سوچ رہے ہیں، تمہارے یہاں مدرسے میں مسلمان کے بچے پڑھتے ہیں، یہ مدرسہ ایسا ہے جہاں یہودی پڑھتے ہیں، یہ مدرسہ ایسا ہے جہاں یہودی پڑھتے ہیں۔ تو امیر صاحب کہنے لگے کہ میرے پاؤں سے زلزلہ نکلنے لگا کہ مدرسہ جہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پر حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اور وہاں پر جا کر قرآن مجید کے پڑھنے والے یہودی ہو، نصرانی ہو۔ تو امیر صاحب کے پیشانی سے پسینہ نکل آیا اور پوچھتے ہیں آسٹریلیا کے باشندے سے کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ آسٹریلیا کا مسلمان باشندہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ لوگ یہودی ہیں، یہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ قرآن کی تفسیر کو پڑھ کر مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں جتنا کہا جائے، جتنا بولا جائے، جس کے بارے میں جتنی تحقیق کی جائے، ہماری تحقیقیں کم ہوں گی، ہمارا بولنا کم ہوگا، ہمارا کہنا کم ہوگا، ہماری تقریریں کم ہوں گی، ہماری تفسیر کم ہوگی، ہماری تشریح کم ہوگی، لیکن قرآن مجید کے تفاسیر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ یہودی علماء آئے، آ کر کہنے لگے کہ ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے انجیل میں نازل ہوتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم لوگ عید مانتے، عید تصور کرتے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، قرآن بھی پڑھے ہوں گے وہ لوگ۔ امیر المومنین پوچھے کہ بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ تو امیر المومنین کو ایک یہودی کہنے لگا کہ قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے امیر المومنین تمہارے آقا کا فرمان ہے کہ یہ آیت قرآن مجید میں نازل ہونے والی آیتوں میں سب سے آخری آیت ہے۔ اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے مطلب ہم لوگوں کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اگر ہم لوگوں کے اندر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم لوگ خوشیاں مناتے۔ اب یہودی ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کے اندر کا سورہ بول رہا ہے، وہ بھی آیت پڑھ کر سنا رہا ہے۔ ہم لوگ کیسے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم کہ کون سی آیت کون سے سورے میں ہے، کون سا پارہ کس پارے کے بعد ہے، کس پارے سے پہلے ہے، کون سا سورہ کس پارے کے اندر ہے، کچھ بھی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی قریب میں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، ہاتھ میں ریلائنس فون رکھا ہوا تھا، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ فون کے اندر جو میوزک ہوتے ہیں، وہ نوجوان کہنے لگا کہ 300 میوزک ہے۔ بول ڈالا تو بس نہیں، 300 میوزک آئی بول کر بول دیا تو
हमें समझते हैं हमारे नौजवान दीवाने भोले, कुरान चढ़ता नहीं, हदीस चढ़ती नहीं, दुआएं चढ़ती नहीं। इतना दिमाग है हमारे नौजवानों को, इतना दिमाग है कि अगर वो दिमाग जो वो तिजारत में लगाया या नहीं तो दूसरे कामों में लगाया, अगर आधा हिस्सा भी कुरान के हासिल करने पे लगाता तो एक एक मोहल्ले में 25-25, 30-30 हाफिजा होते, आलिमा होते कि नहीं होते। अफसोस के पूरे मोहल्ले के घरों को जमा कर दिया जाए, पूरे मोहल्ले में रिसर्च कर दिया कहा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 हाफिज मिलेंगे, 1 या 2 मौलवी मिलेंगे। फिर क्या बोला तो मदरसे में जाकर छोड़े हजरत, दिमाग में चढ़ा नहीं, बच्चा भाग को आ गया। दिमाग है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब वो रिलायंस फोन लिया, कहने लगा कि 300 म्यूजिक है। कितने? वो अलार्म आती ना, फोन आया तो जो म्यूजिक बजती है वो कितने हैं? 300 है। अब वो बताता गया, सिर्फ ये म्यूजिक है, ये म्यूजिक है बता दिया तो बस हो गया था। ये म्यूजिक है बोलकर ये म्यूजिक, ये गाने की म्यूजिक है बोल रहा है। खाली म्यूजिक सुनकर उन्हें गाना भी याद आ गया। ये म्यूजिक ये गाने की, ये म्यूजिक ये गाने की, ये म्यूजिक ये गाने की, ये म्यूजिक। इतना ही नहीं बोला, ये गाना ये आदमी गाया है, ये गाना ये आदमी गाया है, ये गाना ये आदमी गाया है। खाली म्यूजिक को सुनकर उसे गाना याद आया है तो उसका दिमाग छोटा क्या? तुम्हें बोलो, खाली टिन 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 ये आवाज मालूम कर लेकर उसे गाना याद आ गया है। हमें नमाज पढ़ते हैं, कितने सालों से हम लोग नमाज पढ़ाए आप लोगों के लिए, इमाम नमाज पढ़ाया, कितने मर्तबा आप लोग कुरान की आयतें सुने होंगी। मौलाना जो ये आयत पढ़ रहे हैं, ये पारे की आयत है बोलकर कौन भी नौजवान बोलिया? ये सूरे की आयत है बोलकर कौन भी बोलिया? नहीं बोलिया। क्यों? कि उसे मालूम नहीं है, तवज्जो नहीं देता है। एक गाने की म्यूजिक आ गई है तो वो गाने वाला बताता है और फिर गाना भी बताता है, फिर पिक्चर का नाम भी बताता है। हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं, यहूदी उलमा मिलकर, यहूदियों की एक जमात मिलकर, नसरानियों की एक जमात मिलकर पूरा वो रिसर्च कर रही है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास यहूदी आए, आकर कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, ये आयत जो तुम्हारे कुरान मजीद में नाजिल हुई है, अगर ये आयत हमारे इंजील में नाजिल होती तो हम लोग उसको ईद का दिन तस्वुर करते। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि बताओ कौन सी आयत है। यहूदी उलमा कहने लगे अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम इला आखिरिही। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तुमको क्या मालूम है? हमको मालूम कि ये आयत कब नाजिल हुई है, कहां नाजिल हुई है, कैसे वक्त में नाजिल हुई है, हमारे आका क्या कर रहे थे। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये आयत जिलहिज्जा के महीने में नाजिल हुई है, अरफात के मैदान में नाजिल हुई है, जुमे का दिन था उस वक्त नाजिल हुई है, अल्लाह के रसूल ऊंटनी पर सवार थे उस वक्त नाजिल हुई है। तुम क्या ईद मनाते? सारी दुनिया मिलकर इस आयत के नाजिल होने के दिन को ईद मनाती है, क्योंकि अरफा के दिन से ज्यादा बेहतर कोई दिन नहीं है। अरफा के दिन जितने लोग जमा होते हैं सारी दुनिया के अंदर ईद के मौके पर उतने लोग कोई कहां से जमा नहीं होते। और दूसरा, जुमे के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई है, इसलिए ये आयत के नाजिल होने के दिन हम लोग ईद मनाते हैं, बेहतरीन ईद मनाते हैं। अजीजान गिरामी, कुरान मजीद वो किताब कि जिसके अंदर नुकात निकालते जाओ, नुकात को पैदा करते जाओ, एक एक वाकया ले लो तो हजारों हजारों जुमे खत्म हो जाएंगे। यही आप लोग सोचते होंगे हजरत हाबिल और काबिल का वाकया कितने दिनों से बयान किया जा रहा है। हाबिल को काबिल ने मार दिया है, कितनी बातें मालूम हुई। वही मैं गुज़िश्ता जुमा अर्ज किया कि हाबिल और काबिल के दरमियान लड़ाई हुई तो काबिल ने हाबिल को एक ना एक दिन मार के रख दिया। ये जिंदगी और दुनिया के अंदर सबसे पहले मरने वाला आदमी था हजरत हाबिल। इससे पहले दुनिया के अंदर कभी किसी को मौत नहीं आई थी। हाबिल और काबिल किसी की मौत को नहीं देखे थे, कोई उन लोगों के सामने नहीं मरा था। जैसे ही हाबिल मर गया तो काबिल को डर शुरू हो गया। क्यों डर शुरू हुआ? इसलिए कि मौत को देखने से आदमी को डर शुरू होता है, खौफ शुरू होता है। अरे देखने से क्या, आका ने फरमाया कि मौत को याद करो, मौत को याद करो, क्योंकि मौत तुमको जब जब याद आएगी गुनाहों से तुम लोगों को बचाएगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को कैसे बनाया, मौत को किस तरीके से बनाया, कितना छुपा कर बनाया, किसी को नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत वो चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को 1000 पर्दों में छुपा कर बनाया।
1000 पर्दों में छुपा कर बनाया, और जैसे ही मौत बन गई अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 जंजीरों से मौत को बंद कर रख दिया। 70,000 बेड़ियां अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को डाल दिया। क्यों? कि मौत इतनी भयानक है। दुनिया के अंदर आदमी सब कुछ देखा होगा, मौत को कोई देखा नहीं देखा। सब कुछ खाया होगा, सबका मजा चखा होगा, सबकी लज्जत हासिल हुई होगी, लेकिन क्या मौत के मजा किसी को मालूम है? मौत का टेस्ट किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम। वो मजा जिंदगी में एक मर्तबा आता है और आदमी एक मर्तबा उसको हासिल करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, आमाल तुम्हारे सुधर जाएंगे, लिबास तुम्हारा सुधर जाएगा, अखलाक तुम्हारे सुधर जाएंगे, मुआमला तुम्हारा सुधर जाएगा, कैरेक्टर तुम्हारा सुधर जाएगा। क्योंकि आदमी को फितरतन मौत से डर होता है, तबान मौत से डर होता है। कहीं भी किसी भी उन्वान में मौत का तज़किरा उसे पसंद नहीं आता, मौत का वाक़या उसे पसंद नहीं आता। मौत से डरते हम क्या डरेंगे? हजरत अंबिया भी डरते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौत को याद करते थे, उनके जिस्म से खून के टपके गिरते थे, उनके जिस्म से खून के टपके गिरते थे। क्यों? कि मौत क्या चीज है हजरत ईसा को मालूम था। मौत कैसे आएगी हजरत ईसा को मालूम था। मौत किस किस्म से आएगी हजरत ईसा को मालूम था। यहां तक कि खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं एक रास्ते से जा रहा था, एक चरवाहा ऊंटों को रखकर चरा रहा था, बहुत सारे ऊंटों को। मैं गया, एक ऊंट के कान में, जो मोटा ताजा ऊंट था, उसके कान में जाकर मैंने कुछ कह दिया। फिर चंद दिन के बाद वापस आया तो पूरे ऊंट चर रहे थे, लेकिन जिसके कान में जो कुछ मैं कहा था वो ऊंट खामोशी के साथ एक कोने में खड़ गया, न खा रहा है न पी रहा है, सिर्फ उसके आंखों से आंसू जारी है। और जो मोटा ऊंट था वो दुबला हो गया, जो मोटा ऊंट था वो दुबला हो गया। चरवाहे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है? कि मैं जब वापस गया तो ये ऊंट मोटा था, अब मैं वापस आ रहा हूं तो ये ऊंट दुबला है, आंखों से इसके आंसू जारी है, क्या इसे कहीं पैर में दर्द या पेट में दर्द है? तो चरवाहा कहता है कि ऐसा कुछ भी इसे दर्द नहीं है, लेकिन तुमने उसके कान में क्या कह दिया पता नहीं, कि तुम जब कह दिए उससे ये खाना छोड़ दिया। हजरत ईसा ने कहा कि मैं तो इसे कुछ भी नहीं कहा, पेट भरकर खाने वाले जरा मौत को याद कर ले, इतना जो बोलिया सो उसके बाद दूसरा नहीं बोलिया मैं। पेट भरकर खाने वाले जरा मौत को याद कर ले। एक ऊंट के कान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये कह दिए तो ऊंट खाना भूल गया। अब हमारे बाप का इंतकाल होता है, हमारे दादा का इंतकाल होता है, तकरीरों में मौत को सुनते हैं, मौत को देखते हैं, मौत के बारे में तज़किरा करते हैं, फिर भी इंसान गुनाहों पे गुनाह करता है कि नहीं करता है? जो ऊंट खाना छोड़ दिया वो ऊंट से बदतर हो गए आज हम लोग, कि हमको मौत के बारे में मालूम होकर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बाकायदा खाना नहीं छोड़े, पीना नहीं छोड़े, बल्कि गुनाहों को तक हमने नहीं छोड़ा। मौत का याद रहकर भी हम टीवियां देखते हैं, मौत का याद रखकर भी हम लोग दाढ़ियां मुड़ाते हैं, मौत का याद करके भी हम लोग झूठ बोलते हैं, मौत का याद करके भी हम लोग चोरियां करते हैं, मौत का याद रखकर भी हम लोग जिना करते हैं, मौत का याद करके भी हम लोग तरह तरह के गुनाह करते हैं। जरा सोचो तुम लोग या हम लोग टीवी देखते देखते मौत आ जाए, खुदा को क्या जवाब देंगे? अगर कोई आदमी हज्जाम के दुकान में मर जाए तो खुदा को क्या जवाब देगा? कोई आदमी लड़की को छेड़ते छेड़ते मर जाए, खुदा को क्या जवाब देगा? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह को मौत उसके दरवाजे पर आकर कहती है कि याद रख ले, जब तू सो रहा है तो उठने से पहले भी तुझे मौत आ सकती है। ये आकर मौत कान में बोल कर जाती है। हमको सब कुछ सुने आता है, लेकिन मौत की आवाज हम लोगों को नहीं सुनाई देती। सब बातें हम लोगों को सुनाई देते हैं, लेकिन मौत की एक आवाज हम लोगों को सुनाई नहीं देती। हजरत इज़राइल
अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौत के फरिश्ते हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे एक बहुत बड़ा दरख्त बनाया है, दरख्त में उतने ही पत्ते हैं जितने दुनिया के अंदर इंसान हैं, वो दरख्त में उतने ही पत्ते हैं दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं। उन दरख्त में से हर पत्ते में हर आदमी का नाम लिखा हुआ है। आपका नाम भी होगा, मेरा नाम भी होगा, हमारे अब्बू का नाम भी होगा, आपके अब्बू का नाम भी होगा। वो पत्ता जब एक पत्ता गिरता है तो उसके 40 दिन के बाद मैं आदमी की रूह को कब्ज करता हूं। जो पत्ता आसमान से वो दरख्त में से गिरता है, वो पत्ता मेरे पास पेश कर दिया जाता है, उसके ऊपर जो नाम होता है उस नाम वाले आदमी को बराबर 40 दिन के बाद मैं जाकर क्या करता हूं, रूह को कब्ज करता हूं। सारी दुनिया के अंदर मरने वालों का नाम वहां पर मौजूद है। अफसोस कि हम लोगों को मौत का जरा बराबर भी डर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा बैठे हुए थे। अबू हुरैरा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आओ अबू हुरैरा, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगा। अल्लाह के रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर एक जगह पर गए तो एक जगह पर बहुत सारे इंसान की हड्डियां पड़ी हुई हैं, सर के खोपड़ी, जिस्म की हड्डियां, वहां पर कुछ जानवर की हड्डियां भी पड़ी हुई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से खिताब करके फरमाया, देखो एक जमाना वो था कि इन हड्डियों पर गोश्त था, गोश्त में रूह थी। एक जमाना वो था कि इन हड्डियों पर गोश्त था, गोश्त पे रूह थी। जब इनके जिस्मों पर गोश्त और रूह थी तो इनके दिमागों के अंदर उम्मीदें पाने जाते थे, ये तरह तरह के ख्याल करते थे, अजीब अजीब इनका प्लान था। आज देखो ना इनका दिमाग है ना इनका प्लान है। एक जमाना वो था कि इनके जिस्मों के अंदर कपड़े, हसीन हसीन कपड़े रहते थे, इनका जिस्म मोटा था, गोश्त थे। आज बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। इनके जिस्म पर एक मच्छर भी काटता तो इसके मच्छर को मारकर तबाह करते थे। आज देखो इसकी हड्डियों को दिमक चल रही है, ये आदमी दिमक को हटाने की भी काबिल नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनते गए, रोते गए, सुनते गए, रोते गए। पूरे सहाबा जो बाजू खड़े थे वो भी सुनकर रो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो जितना रोना चाहता है इन हड्डियों को देखकर रो ले, इन हड्डियों को देखकर इबरत हासिल कर ले। हम लोग भी कब्रिस्तान जाते हैं, हम लोग भी हड्डियों को देखते हैं, कभी हमारे आंखों से आंसू आए, कभी हम लोगों को डर हुआ, कभी हमारे अंदर फिक्र पैदा हुई कि हम भी मर जाएंगे, ये जिस्म गल जाएगा, ये दिमाग का भेजा उड़ जाएगा, सिवाय हड्डी के कुछ नहीं रहेगा, हमारी कब्र को भी खोदी जाएगी, हमारी हड्डियां भी निकलकर बिखर जाएंगे, हमको देखकर लोग कुछ भी अपने जूतों से रौंदेंगे, कोई हमारी हड्डी पर पांव रखकर खड़ेगा, कोई हमारी खोपड़ी को ठोकर मारेगा, कोई हमको देखने वाला नहीं होगा। दोस्तों, मौत को याद करो, मौत बड़ी खतरनाक चीज है। इसीलिए हजरत उलमाए किराम मौत को याद करते तो दस्तरखान में से खाना छोड़कर उठ जाते थे, बिस्तर को छोड़कर उठ जाते थे, अपने चेहरे को मार लेते थे, अपने सीने को मार लेते थे। खलीफा हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह दुनिया के अंदर गुजरा है, इतना अच्छा बादशाह गुजरा है जिसकी सीरत की, जिसकी तारीख की किताब बाकायदा मौजूद है। उसका एक 16 साल का बेटा था। बच्चों को भी मौत के बारे में याद दिलाओ, मौत का तस्करा बच्चों के सामने करो। हजरत हारून रशीद जो बादशाह थे, उनका 16 साल का छोटा बच्चा था। वो अक्सर उलमा की महफिल में बैठता था, उलमा की ग्रुप में रहता था। अब उलमा क्या करते, डराने की बातें करते थे, मौत की बातें करते थे, कयामत की बातें करते थे, हशर की बातें करते थे, जहन्नम की बातें करते थे। 16 साल का बच्चा कोई बड़ी उम्र का बच्चा नहीं है। हमारे जैसा पख्ता
उम्र का बच्चा नहीं है, 16 साल का बच्चा। उसे उलमा की तकरीर सुन सुनकर मौत ने इतना उसे घाबरा कर दिया, इतना डरा दिया कि वो बच्चा अपने बाप को कहता है, एक मर्तबा सल्तनत पे आया तो पुराने फटे कपड़े पहनकर आया, उसके कपड़ों में कोई खूबसूरती नहीं थी, बावन लगे हुए कपड़े थे, ये बादशाह के बेटे के कपड़े थे, कोई ऐसे वैसे आदमी के कपड़े नहीं थे। बादशाह के दरबार में जब हारून रशीद का बेटा आया, वजीरा सब मिलकर बोले कि बादशाह, ये बेटे से तुम्हारी इज्जत तबाह हो रही है, क्योंकि एक बादशाह का बेटा हो तो वो कैसे कपड़े पहनकर आना है कि नहीं आना है। बाप जितना मालदार होता है, बेटा भी उतने मालदार के कपड़े पहनकर आता है। बाप जितना अच्छा हाई क्वालिटी का होता है, बेटा भी उतने ही अच्छे कपड़े पहनकर आता है। अगर बाप के सामने बेटा कोई खराब कपड़े पहनकर आता है तो बाप को शर्म होती है, बेटे के सामने अगर कोई बाप खराब कपड़े पहनकर आता है तो बेटे को शर्म आती है। आना है कि नहीं आना है? अब आप अच्छे कपड़े पहने हैं, तुम्हारे अब्बा कपड़े फटे पहन लेकर आए, मैले कपड़े पहन लेकर तुम्हारे ऑफिस को आ जाए, क्या तुमने शर्म नहीं आएगी? नहीं। तुम्हारा बेटा बिल्कुल घटिया किस्म के कपड़े पहनकर आए, क्या बाप को शर्म नहीं आएगी? क्यों शर्म आती है? इसलिए कि मेरा बेटा लायक नहीं है, ये मेरा बाप मेरे पैसों के लायक नहीं है। जरा ईमान के साथ सीने पे हाथ रखकर बताओ नौजवानों कि जब तुम्हारा बेटा दाढ़ी मुंडाकर आए, क्या कभी तुमको शर्म आई? तुम्हारा बाप बूढ़ा सही दाढ़ी मुंडाकर आया, क्या तुम्हें शर्म आई? तुम्हारा बेटा सूद का व्यापार करके आया, चोरी का व्यापार करके आया, झूठ का व्यापार करके आया, हराम का व्यापार करके आया, कभी बाप को शर्म आई? कभी बेटे को शर्म आई? क्यों शर्म नहीं आती? पूरी हिस्स मर गई, पूरा शर्म मर गया, पूरी गीरत मर गई हमारी। तो बहरहाल वजीरों ने कहा कि बादशाह जहां बना, ये बेटे से तुम्हारी इज्जत में खारी हो रही है। बेटे को हजरत हारून रशीद बुलाकर कहने लगे कि बेटा, इतनी बड़ी दौलत पड़ी है, ये कपड़े पहनकर तू मेरे दरबार में आ रहा है, तेरी वजह से मुझे शर्म आ रही है, अच्छे कपड़े पहनकर आ। बेटा क्या बात बोला मालूम? अब्बा, मेरे कपड़ों से तुम ना जब शर्म आती है तो तुम्हारी हुकूमत से मुझे शर्म आ रही है। 16 साल का बच्चा बाप को बोल रहा है, सो मेरे कपड़ा से जैसा तुम ना शर्म आ रही है, वैसे तुम्हारी हुकूमत से मुझे शर्म आ रही है। बाप परेशान होगा, क्या रे इतनी बड़ी बात बोला ना बेटा, मेरी हुकूमत से बाप बेटे को रहता कि नहीं रहता? अरे हमारे बाबा भी उन्हों, हमारे बाबा इससे, हमारे बाबा वैसे। बाबा कितना बड़ा चोर रहता कि बेटे को क्या रहता? उतना फकर रहता। हारून रशीद नऊज बिल्ला चोर नहीं ना, डाकू नहीं ना, खानदान नबूवत के वो हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के औलाद में से हजरत हारून रशीद पैदा हुए। सो नबवी खानदान के थे, सैयद खानदान के थे, बादशाह थे, अल्लाह वाले थे। हारून रशीद वो बादशाह थे, उनके बारे में आता है कि अपनी खबर बनाकर उस खबर पर उलमा को उतार कर रोजाना कुरान पढ़ाते थे। वो खबर बनाकर रोजाना आलिम को उस खबर पर उतार कर कुरान पढ़ाते थे। इतने बड़े अल्लाह वाले थे वो। ऐसे बाप को बेटा बोल रहा है, अब्बा जैसे मेरे कपड़ा से तुम ना शर्म आ रही है कि तुम्हारी हुकूमत से मुझे शर्म आ रही है। बाप पूछा, क्या बेटे ऐसी बात बोल डाला ना? हाँ सही बात ही बोलिया। तुम्हारी हुकूमत कहां तक चलती बताओ, कहां तक चलती तुम्हारी हुकूमत? ये आदमी पर, ये आदमी पर, ये आदमी पर चलती। मेरी हुकूमत देखो कहां तक चलती। वहां एक कौवा बैठा था, कौवे को बोले इधर आ रे, कौवा आकर बेटे के हाथ में बैठ गया। फिर कौवे को बोले कि उठकर जा, उड़कर चले गया। बेटा बाप को बोलता, तुम्हारी हुकूमत तो सिर्फ इंसानों पर चलती है, मेरी हुकूमत जानवरों पर भी चलती है, मेरी हुकूमत जानवरों पर भी चलती है। अब्बा जान ये कपड़े में क्यों पहना हूं मालूम? कितना भारी कपड़ा पहना तो भी आदमी का कपड़ा एक ना एक दिन तबाह होने वाला कपड़ा। अच्छे कपड़े मैं कहीं को पहनना बोलकर मैं ये कपड़े पहना हूं। जब तुम्हारा दिल साफ नहीं तो तुम्हारे पास मुझे रहना भी अच्छा नहीं है। मैं जाता हूं, तुम्हारी हुकूमत तुमना अच्छा है बोलकर बेटा निकल गया। क्यों निकला? सिर्फ मौत को याद करके निकल गया, सीधा निकल कर चले गया। बाप बोल रहा है रज्जाबा रज्जाबा, नहीं अब्बा मैं चले जाता हूं, नहीं अब्बा रज्जाबा, नहीं अब्बा मैं जा रहा हूं। आखिर में
माँ आकर कहती है कि बेटे ये हंगोटी ले ले, कुछ काम आ जाएगी तुझे। एक हंगोटी थी, एक जग, ये कुरान मजीद एक हाथ की लाठी लेकर इतने बड़े बादशाह का बेटा चले गया। जाकर बिल्कुल गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गया, जाकर मजदूरी कर रहा है, कूली वाले की तरह मजदूरी कर रहा है। कभी किसी का बोझ उठा रहा है, कभी किसी के घर को दीवार बनकर दे रहा है, कोई कुछ। रोजाना आदमी आते, एक बादशाह के बेटे से काम लेकर जाते। आदमियों को नहीं मालूम कि ये बादशाह का बेटा है। ये रात में नमाज पढ़ता, दिन में रोजा रखता, सब कुछ करता, हफ्ते में एक मर्तबा काम करता, हफ्ते के दिन काम करता, मजदूरी लेता, इतवार पीर मंगल चाशुम्मा जुमेरा जुम्मा, ये पूरे दिन बाकायदा वो पैसों से खाता, फिर हफ्ते के दिन एक दिन आकर काम करता। तो उसके काम करने का कानून क्या था? जो भी आकर काम कराता तो उस काम कराने वाले से बोलता कि मैं काम करूंगा, लेकिन 21 दिन काम करूंगा, नमाजों के वक्त में काम नहीं करूंगा। ये कानून डालकर क्या करता, उन्हें काम करता था। हमें जाकर दुकानों में काम पूछते ही, ऑफिसों में काम पूछते ही, कब तू भी हमें बोलेगा काम कर तू साहब, एक 500 रुपए दरमा कम दो, लेकिन नमाजा के वक्त में नमाजा को चल जा तू बोलकर कौन तू पूछ कर जाकर नौजवान काम करे क्या? करे कौन भी काम नौजवान? नमाजा के वक्त में नमाजा को चल जाऊंगा ना। उन्हें कानून पेश करके दाखिला लिया, नहीं तो ये दाढ़ी मुड़ाकर गले में बैठने वाला यजमान अपने नौकर को नहीं बोला बा तू काम करना का तो नमाज पढ़ना, वो सूरत परित में तुझे काम को रखूंगा बोलकर ना यजमान नौकर को काम में रखता है, ना नौकर जाकर ये शर्त के साथ काम करता है। ऐसे नौकर और ऐसे यजमान है। कितने नौजवानों की शिकायत मेरे पास आती है कि हजरत अपने आधा पौना घंटा टाइम जुमा में ताकीर कर देते हैं, मुसलमाना रखकर हमारे यजमान हमने गालियां देते हैं, हजरत 2-2 घंटे का पेमेंट हमारे तनख्वाह में से कट कर लेते हैं। कितना गिरा हुआ मुसलमान कमीना रजील हो गया। जुमे को जाकर आधा घंटा लेट आया तो उसकी तनख्वाह में से एक मुसलमान मारवाड़ी कट करा तो परवानी, धेड़ कट करा तो परवानी, चम्बार कट करा तो परवानी। तुम मुसलमान का औलाद होकर एक मुसलमान की तनख्वाह में जुमा के दिन आधा घंटे का तनख्वाह कट करता ना, तेरे बाप को जाकर पूछ के बाप को कलमा भी मालूम है कि नहीं मालूम है? तेरी माँ को जाकर पूछ के कलमा भी मालूम है कि नहीं मालूम है? कलमा पढ़ने वाले माँ बाप के पेट से पैदा हुई औलाद खुदा की कसम इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगी। आकर नौजवान रोता हुआ मुझे बोला कि हजरत आप 15 मिनट ताखीर कर देते हैं, इराक के वास्ते दुआ करते ही बोलकर मैं बैठ कर गया तो मेरा मुसलमान यजमान मेरे 15 मिनट की तनख्वाह कट कर हजरत बोलता। मैं बाकायदा जाकर उस मुसलमान के दुकान को देखा। बद्दुआ करना अगर जायज होता, खुदा की कसम बद्दुआ कर देता। आका ने बद्दुआ करने से मना किया है। एक नौकर की 15 मिनट की तनख्वाह, मैं पूछा कि कितना तनख्वाह तुझे? तो 2500 रुपए महीने को तनख्वाह। अब वो हिसाब डालने भी शर्म, 15 मिनट को कितने रुपए कट होंगे? 3-4 रुपए कट होंगे 15 मिनट को, वो भी जुमा जैसे मुकद्दस दिन में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की आयत है, जब जुमे की अजान हो जाए तो व्यापार बंद कर डालो और जुमे की नमाज के बाद दुकान को खोलकर तलाश करो रिस्क की। जुमे की नमाज कब खत्म होती तब उसके बाद दुकान को खोलना। तुम्हें एक सोमारी, तुम्हें नमाज से मोहब्बत नहीं है और नमाज से उल्फत नहीं है, तकरीरों का शौक नहीं है, अखलाक और किरदार को बनाने का तुम्हारे पास शौक नहीं है, तो क्या तुम्हारे दुकान के नौकर को भी ख्वाहिश नहीं रहेगी? कितना बड़ा कमीना काम करा रंगा। जाकर किसी हिंदू को पूछो कि उसका नौकर अगर किसी गणेशा की पूजा करके आया तो उसके नौकर को हाथ जोड़कर उसका क्या तबरुक लेकर खाता है। हमें जाकर हमारे नौकरा दुकान को जाकर नमाज पढ़कर लेट आए तो पूछना क्या बात, दुकान के वास्ते भी मेरे वास्ते दुआ करे क्या? पूछना की नहीं, 15 मिनट की तनख्वाह कट करना की। ला हौल वला कुव्वा। दुकाना चलाने वालों से मैं गुजारिश करता हूं, ऐसे तुम्हें क्या जलाएंगे दुकान? इसका बाप दुकान बड़े बड़े लोग चलाए, ये ठसका लगा तो पूरी पिरापट्टी गारत होकर खामोश जाकर कब्रस्ताना में सो रही। अपनी मौत को अगर याद रखेंगे ना, 15 मिनट की तनख्वाह मुसलमान कट नहीं करेगा। मौत को याद रखेंगे ना, नौजवान को कहेगा कि 15 मिनट लेट आने पर गाली नहीं देगा। अभी क्या हुआ, 15 मिनट की तनख्वाह भी कट कर को कच्चे कच्चे गालियां कहते देता सो। कच्चे गालियां को सब गालियां में भी कच्चे पक्के ही क्या? नहीं अधगदरे ही क्या? कच्चे गालियां कहते। लाहौर मुसलमान होकर गाली देता है, कच्चे गालियां, पक्के गालियां, अधगदरे गालियां।
लाहौल वाला को कुछ हो ना सो, हमारे दुकान में काम करने वाला बच्चा नमाज को जाकर दुआ कर को, इराक के वास्ते दुआ कर को, मुसलमान के वास्ते दुआ कर को, बुश के वास्ते बद्दुआ कर को आया ना बोलकर ये यजमान खुश होना की नहीं गुस्सा करना की। मस्जिद में बैठे ही बोलो, यजमाना बोले तो नमाज के वक्त तू नहीं पढ़ा तो नमाज कम से कम तेरे नौकर को तू भी नमाज को भेज। तू एक मनहूस सूरत वाला नमाज नहीं पढ़ता तो कम से कम तेरे नौकर को भेज। क्या मालूम कि नौकर की नमाज से तेरे दुकान के अंदर बरकत आ जाए, क्या मालूम कि तेरे नौकर की दुआ से तेरी तरक्की हो जाए। कितने मुसलमाना के दुकाना में हम क्या से देखे, अंधे नहीं रास्ते में चलते हुए, नमाज का वक्त होता है, यजमान भी बैठा हुआ है, नौकर भी काम कर रहा है, यजमान के मुंह से निकलता से नहीं, जाबा नमाज का वक्त होगा, पहले तू जाको नमाज पढ़ लगा जा, बाद में मैं जाकर नमाज पढ़ लगा रहा, तो इसके मुंह में लखवा मारा तो मारेगा, नहीं बोलता वैसा। बोलता क्या, तू जाकर नमाज पढ़ लगा जा, मैं पढ़ लगा रहा तू, नहीं तो मैं जाकर नमाज पढ़ लगा रहा था, उसके बाद तू पढ़ लगा रहा, ऐसा बोले क्या हम लगा। ला हौल वला कुव्वत। दुकानों वालों से जो भी दुकान रखा है, आज के बाद तुम्हें भी नमाज पढ़ना, तुम्हारा नौकर भी नमाज पढ़ना। तुम्हारे कामों की वजह से अगर तुम्हारा नौकर नमाज नहीं पढ़ा तो उसके साथ साथ यजमान को भी कयामत में उसके नमाजों का जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे काम काज की वजह से अगर उसकी नमाजों में खलल होता है तो नौकर की नमाज का जवाब यजमान को भी देना होगा। खलीफतुल मुमिनीन हजरत हारून रशीद का बेटा कानून पास करता है, काम करूंगा मैं लेकिन नमाजों के वक्त काम नहीं करूंगा। अच्छी बात है, रोजाना एक हफ्ते में एक दिन इस काम करूंगा, तनख्वाह कितना देना, पूरे 7 रुपए तनख्वाह देना। 7 रुपए से 1 पैसा ज्यादा भी लेऊंगा नहीं, 1 पैसा कम भी लेऊंगा नहीं। 7 रुपए बादशाह के बेटे के वास्ते कहती हैसियत क्या, 7 करोड़ भी कोई उसके सामने हैसियत नहीं है। हमारे यहां मोबाइल में हजारों रुपए की करेंसियां तबाह हो जाते हैं। मोबाइल लेकर बात करा तो इन्हें सही से बात करता कि नहीं, चुपके बात करता कि जोरू कुछ बात करता कि नहीं, स्टपनी को बात करता कि 500 रुपए कट कर डालिया, 500 रुपए तबाह कर डालिया, 15 रुपए की तनख्वाह काटता कहते ला हौल वला कुव्वा। हजारों रुपए की करेंसियां सब लेकर तबाह कर डाले, 15 रुपए की तनख्वाह नौकर की कट करता है, ला हौल वला कुव्वा। हारून रशीद का बेटा बोलिया 7 रुपए लूंगा, 1 पैसा ज्यादा भी नहीं, 1 पैसा कम भी नहीं। अच्छी बात है। यजमान एक आदमी आया घर बनाने के वास्ते, आने के बाद बाकायदा उसे ईंट पूरे जो चीजा मटेरियल देना था दे डालिया, इन्हें इसके काम को चलेगा। जब शाम को आया तो एक आदमी मिलकर 10 आदमियों का काम कर को रखा है। एक ही एक आदमी को इन्हें काम को लाया सो, लेकिन 10 आदमियों का काम होकर है। बोले इतना ज्यादा काम कर डाले तुम्हें, एक काम करो मेरे तरफ से एक तोहफा, एक 4 दिनार जरा ज्यादा ले लियो। तो हारून रशीद का बेटा बोलिया नहीं नहीं, वादा वादा, 7 से 1 ज्यादा भी लूंगा नहीं, 1 कम भी नहीं लूंगा, 7 ही देना। ले को चले गए। फिर 1 हफ्ता नहीं आने की ना इनका कानून न, अब इतवार को भी नहीं मिलेंगे, फिर मंगल चाशुम्मा जुमेरात जुम्मा भी नहीं मिलेंगे, फिर हफ्ते कुछ मिलते। फिर वो घर वाला आया और एक घर बनाने के लिए आकर देखता है तो बाकायदा वहीं पर कुरान पढ़ता हुआ खलीफा हारून, किसी को नहीं मालूम इन्हें बादशाह का बेटा बोलकर लेकर बैठा है, बैठकर कुरान, आओ भी आज भी काम है तुम ना, अच्छी बात है, चलो वही शर्त, आज एक ही दिन काम करूंगा, 7 दिनार से 1 पैसा कम नहीं लूंगा, मैं एक ही काम करूंगा। अच्छी बात है। गए, जाने के बाद जो जो चीजा देना है सब कुछ दे डाल कर हल्लू पीछे जाकर छपकर ये आदमी को देख रहा है, खलीफे हारून रशीद के बेटे को देख रहा है कि इन्हें कैसा काम करता। एक आदमी मिलकर 10 आदमियों का काम करता बोले तो कैसा हो सकता। 10 आदमी मिलकर 1 आदमी का काम कर सकते, लेकिन 1 आदमी मिलकर 10 आदमी का काम करना बोला तो मुश्किल। छपकर ये मालिक क्या करे देखा तो ये खलीफा हारून रशीद का बेटा, बादशाह का बेटा वली बनना बोला तो कमालित से समझ, वली का बेटा वली बना के तो क्या भी कमाल नहीं, मौलवी का बेटा मौलवी बना बोला तो कोई कमाल नहीं है, बादशाह का बेटा वली बना बोला तो आज के जमाने में बादशाह नहीं, सदर साहब का बेटा वली बना बोले तो, इमाम बोला बना तो, हाफिज बना बोला तो बहुत बड़ा कमालित है, काउंसलर का चेयरमैन का बेटा आलिम बना बोला तो बहुत बड़ा कमालित, क्योंकि तो अक्सर बड़े आदमी रहते ना उनके बेटा ना उत्तर परकियां रहते हैं,
उमूमन होता वो दौर दुनिया के अंदर। वली का बेटा वली बनना कमाल नहीं है, मौलवी का बेटा मौलवी बनना कमाल नहीं है, आलिम का बेटा आलिम बनना कमाल नहीं है, लेकिन ये बादशाह का बेटा इतना बड़ा वली, ये बच्चा क्या किया है 16 साल का, ईंट बालू सब रखकर है, सामने कुरान पढ़ लेकर है, उंगली से इशारा कर रहा है, उंगली से इशारा करा तो मट्टी बालू सब मिल रही है, फिर उंगली से इशारा करा तो एक एक ईंट उड़ को जाको वहां बैठ रही है, खाली उंगली से इशारा। कितना बड़ा करामती रहना। हाँ, हमारे चोरा को बोलो जरा करामत दिखाओ बा बोलकर। हमें किसी के घरा बनने में करामत नहीं दिखाते, दिखाते क्या? हमें किसी की मदद करने में करामत नहीं दिखाते। करामत बोलकर अगर हम लगा दिखाए तो है ना, चाकुआ होलसेल के इधर से चुबा उधर निकालो, उधर से चुबा उधर निकालो, यहाँ करो वो करो, अंगार में कूदो, औरतों को लपटो, ये इनकी करामत है। करामत सभी इनकी ये। वो देखो करामत अल्लाह वाले की, हाथ में कुरान है, कुरान रखकर क्या कर रहा है? उंगली से इशारा कर रहा है, एक एक ईंट उड़ उड़ कर जाकर बैठ रही है, इसे बोलते सो करामत। हमारे करामत ला हौल वला कुव्वा। एक नौजवान का फोन परसों पीर को आया, एक करामती का हाल दिखाने के वास्ते आया, हजरत फौरन तुम्हें आना। ये क्या वास्ते बोलतू मालूम क्या? मैं स्टोरी की स्टोरी नहीं बोलता, मैं ऐसे चोरा बहुत फैल कर ही, इससे बचकर रहो। मगरिब को 10 मिनट ही एक फोन आया, नहीं जानता मैं, हजरत क्या कर रही? घर में बैठे हूं, फौरन निकलकर फला जगह पर आ जाओ। मैं बोला उतना जल्दी मैं नहीं आ सकता भाई, नमाज भी है, मेरी गाड़ी भी मेरा भांजा लेकर गया। नहीं हजरत तब घर में रहो, मैं आता हूं। 15 मिनट से मैसूर रोड से शिवाजी नगर पूरे सर्कल पार करके आ गया उन्हें। वो भी कौन सी गाड़ी है ना, एक गाड़ी महाराजा के सका हूं बैठे रहते ना, अजीब अजीब मॉडल के गाड़ियां, कितनी नंगी रहती की उतनी शो गाड़ी के अंदर। ऐसी 15 मिनट के अंदर उन्हें आया, फिर 15 मिनट के अंदर उन्हें फिर लेकर चलेगा। घर के अंदर देखे तो क्या, एक बहुत बड़ा आमिल बैठा है, उसकी भान को उन्हें नहावन डाल लेकर है। मैं अब तक नहीं देखा ये नहावन क्या चीज होती है। डाल लेकर बैठा है, क्या वो क्या क्या की कर डालकर हमाम में जाकर वो पानी उसके सर से उन्हें डाल रहा। मैं हंक्या से देखा सो, अब तक मैं सुनी हुई बात बोलता था, ये जो वाकया बोल रहा हूं हमारे आंखों से देखे सो। सिर्फ एक भाई बाजू खड़ा है, उन्हें आंखों से हाथ से पानी डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है। मैं देख ले कर बाजू बैठ गया, क्या करता कि कर लेंगे, उसके बाद उसे बुलाकर बात करेंगे बोलकर बुलाकर बात किया। मैं ऐसा लथाड़ा, घर वालों को भी बोलिया, आमिल को भी, नहीं हजरत तुम ना मालूम, मंजे बोल रहा हूं ना आमिल, नहीं हजरत तुम ना नहीं मालूम, ये सब काम करे तो शैतान उतरता सो। उतर को कहा जी तुम्हारे ऊपर सवार होता, क्या पूछा मैं? शरीयत में शैतान उतारने का कानून है, शैतान उतारने की दुआ है, शैतान उतारने का अमल है। शैतान उतारने के लिए तुम्हें जो चीज इस्तेमाल करते हैं सही और जायज तरीके से उतारो। आका ने भी उतारा है, साहबा ने भी उतारा है, कुरान के अंदर आयता मौजूद है। उतारने का काम हमारा उतना कैसा पढ़ने का, या तो लिख कर दो या नहीं तो पढ़कर फूंक डालो। हमने क्या जरूरत क्या, हमें हमाम में एक औरत को लेकर चले जाए और उसके सर पर पानी डाले। खुदा की कसम, पैदा करके 2 साल दूध पिलाने वाली माँ अगर नहाती है तो आज तक हम लोग नहीं देखे। हमारे साथ पैदा होने वाली बहन अगर नहाती है तो हम लोग नहीं देखे। हमारी बेटी जो हमारे गोद में कभी पेशाब की, कभी पाखाना की, कभी उसे सब कुछ हम किए, ऐसी बच्ची अगर 5-6 साल की हो जाए, वो अगर हमाम में नहाती है तो उसके हमाम में हम दाखिल नहीं होते। हम कैसे गिरे हुए मुसलमान की औलाद के किसी का रिश्ता नहीं आता, दुकान के अंदर बरकत नहीं है, घर के अंदर गलत गलत ख्वाब दिखते हैं। चोर आमिलों को पकड़ कर आ जाए, गलीज आमिलों को पकड़ कर आ जाए, नामन डालने के लिए अपनी भान के हमाम में दाखिल कर दे। शर्म तो हया करो, शर्म हासिल करो, गीरत हासिल करो, ऐसे कामों से बचो, कुरान पर भरोसा रखो। तुम भी आमिल है, दाढ़ी छोड़कर तहज्जुद पढ़कर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, कितना ही बड़ा खुदा की कसम शैतान है वो उतर कर खाक में मिल जाएगा। ये आका का फरमान है। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, शैतान उतर के भाग जाएगा। हमको आयतुल कुर्सी पर भरोसा नहीं, आमिलों के जरिए से शैतान उतारते हैं। ये लड़कियों की इज्जत का व्यापार करते हैं,
आमिलों के जरिए से इज्जत निकालते हो। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह मालूम है कि नहीं है? ये इतना कीमती जुमला है, इतनी कीमती आयत है कुरान मजीद की कि उठाकर देखो सीरत हलबिया के अंदर, एक किताब के अंदर इसका एक वाकया लिखा हुआ है। एक औरत के पीछे एक शैतान पड़ गया। आकर देखो किताब मौजूद। हम ना कुरान पर भरोसा नहीं जी, हम ना दुआओं पर भरोसा नहीं। तुम्हारी भान के ऊपर शैतान कहीं को चढ़ा, उसके चेहरे पर जब सुवर की चर्बी चढ़ी तो शैतान भी चढ़ गया। उसके सर से हया का दामन और पल्लू उतरा तो शैतान भी चढ़ गया। उसकी कमर खुली रह गई तो शैतान भी चढ़ गया। टीवी देखती है तो शैतान चढ़ गया। शैतान नहीं तो क्या बहुत बड़ा अल्लाह वाला चढ़ेगा उसके ऊपर? शैतान चढ़ा। उसे उतारना है तो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी भान, तुम्हारी बहू, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मां को हया में रखो और रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़कर फूको। मिंबर के बाजू खड़े होकर खुदा की कसम, खुदा पर ईमान और रसूलुल्लाह पर ईमान रखकर कहता हूं, ईमान के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ो, फलातुन बड़े से बड़ा शैतान भी चला जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या है शैतान को भगाने के लिए? अगर कोई बच्चा रोता है, कोई बच्चा ख्वाब में डर कर रोता है, कोई बड़ा आदमी को ख्वाब में डरावनी डरावनी ख्वाब आते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मीरान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसके बिस्तर पे खड़े होकर अजान दो, इंशाल्लाह उसके बाद उसे डरावनी ख्वाब नहीं आएंगे। नींबू की भी जरूरत नहीं, मेका की भी जरूरत नहीं, ऊद की भी जरूरत नहीं है, आमिल की भी जरूरत नहीं है, चोर की भी जरूरत नहीं, डाकू की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई डर कर उठता है तो उसके बिस्तर पर खड़े होकर अजान दे दो, क्योंकि शैतान को अजान से बड़ा डर होता है। अगर किसी घर के अंदर नया घर लेकर जाते हैं, नया घर है आपका, घर में जाना चाहते हैं, तो फौरन घर के अंदर चार कोने में खड़े होकर अजान दो, इंशाअल्लाह ताला वो घर के अंदर कभी शैतान दाखिल नहीं होगा। दुकान खोलते हैं तो दुकान में खड़े होकर अजान दो, इंशाअल्लाह ताला दुकान में शैतान दाखिल नहीं होगा। तुम्हें टीवियां भी, लिपस्टिका भी, जहन्नम भी, ऐसे चीजें ले कर रखे तो क्या हजरत जिब्राइल भी इजराइल आएंगे क्या? शेख अब्दुल कादिर भी जुनैद बगदादी आएंगे? हमारे कैरेक्टर, हमारे किरदार, हमारा पैशन, हमारा घर देखे तो हमारे घरां से फरिश्तों को नहूसत, हमारी भाना से फरिश्तों को नहूसत, हमारे माँ और बहनों से फरिश्तों को नहूसत। जहां फरिश्ता नहीं वहां शैतान, जहां फरिश्ता नहीं वहां शैतान है। तो बहरहाल एक औरत के पीछे एक शैतान पड़ गया। शैतानों को काम है औरतों के पीछे पड़ जाते हैं। खुसूसन अमलियात के अंदर है कि जो औरत पाक नहीं रहती, नमाजों को छोड़कर रहती है, सर खुला रहता है, तो ऐसी औरतों पर शैतान बहुत जल्द सवार हो जाता है। इसके बाद माँ और बहनों पर एहतियात रखें। औरत पर शैतान सवार हो गया, औरत की शादी होकर है, तो शौहर को शैतान आकर बोलिया, या तो मैं दो जना को खत्म, तुझे भी मारा दूं, उसे भी मारा दूं, या नहीं तो एक रात तू रहना, एक रात में ही रहता हूं इसके साथ। शैतान का फैसला हुआ। अब जान बचाने के लिए इंसान जो शौहर था उन्हें क्या कर लिया, एक रात तू रहे, एक रात में रहता, एक रात तू रहे, एक रात में, ऐसे ही सिलसिला चलता गया। एक दिन शैतान आकर इंसान से क्या बोला, आज की रात भी तू रह जा, मैं कहां की जाना है। इन्हें बोला कहां जाना है? काम ही नहीं, अल्लाह ताला फरिश्तों को रखकर की बात है। वो फरिश्तों को दुनिया के अंदर पैगाम अल्लाह ताला ऐन वक्त पर देता है। ये शैतान वो पैगाम चुराने के लिए जाते हैं, तो तारों के जरिए से अल्लाह ताला शैतानों को मारकर गिराता है। तो ये इंसान शैतान को बोला कि तू कहां जा रहा? आज मैं आसमान के पास जा रहा हूं। तू उड़ता है? हाँ उड़ता हूं। मैं भी तेरे साथ आता हूं। नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं, तू नहीं आ सकता। नहीं नहीं, इतने दिनों से दोस्ती है, बीवी में हमें पार्टनर हो गए ही, क्या मंजे तू सफर में पार्टनर नहीं करता क्या? अच्छी बात है, एक काम कर ले, तू मेरे पाँव को पकड़ ले, मैं ले लेकर उड़तू तुझे। सीधा ले लेकर उड़े। शैतान उड़या, इन्हें पीछे भी पाँव पकड़ लेकर। अचानक शैतान धड़ेल के मानिन ऊपर से नीचे आकर गिर रहा है। तो क्या वजह गिरे कि फरिश्ते जैसे ही शैतान को देखे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। क्या पढ़े? ला हौला वला कुव्वता। आता क्या पढ़ने? हाँ, क्या चाहता कि जाओ सब भी इज्जत के वास्ते मुंडिया हला डाल रही। सच समझ में आई बात? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। देखा इंसान
فرشتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو شیطان اوپر سے نیچے آگا نا. میری بیوی کے بستر پر رہ کر میں شیطان آتے وقت لا حول پڑھا تو کیا شیطان نہیں بھاگے گا کیا؟ ایک دن حسب معمول جس دن شیطان کی باری تھی اس دن انسان بھی آ کر پہلے شیطان سے پہلے بستر پر بیٹھا. شیطان آ کر بولا تو غداری کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، آج میری باری ہے. تو انسان کہتا ہے کہ آج کے بعد تیرا کوئی چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کے زبان سے جو کلمہ سنا وہ مجھے بھی یاد ہے. لا حول ولا قوت پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. سیرت کی کتاب سیرت حلبیہ کے اندر حضرت حلبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ بھروسہ قرآن کی آیتوں پر، قرآن کے سوروں پر اگر آج ہم لوگوں کو ہوتا تو خدا کی قسم کبھی نہ ہمارے گھروں پر، نہ ہمارے عورتوں پر، نہ ہمارے دکانوں پر کبھی شیطان قبضہ کرتا. تو بہرحال یہ عامل کا اور وہ ہارون رشید کے بیٹے کا واقعہ ایسے ہی پینڈنگ میں ہے. آئندہ جمعہ عرض کروں گا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں حسب معمول جمعے کے چندے کا اعلان ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہر نوجوان، ہر آدمی دے کر جانے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دینے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب زبان و دل میں درود و سلام کی خوشبو، نفس نفس میں محمد کے نام کی خوشبو، زبان و دل میں درود و سلام کی خوشبو، چلے ہیں جانب طیبہ مثال پروان
شمع انام کی خوشبو، وہ عرض پاک جہاں چار سو مہکتی ہے، وہ عرض پاک جہاں چار سو مہکتی ہے، رسول پاک علیہ السلام کی خوشبو، رسول پاک علیہ السلام کی خوشبو، یہاں رکے دین ادھر سے گزرے ہیں، یہاں رکے ہیں شہیدین ادھر سے گزرے ہیں، بتا رہی ہے ہمیں گام گام کی خوشبو، بتا رہی ہے ہمیں گام گام کی خوشبو، کلی کلی میں تبسم نما وہ غنچہ دہن، کلی کلی میں تبسم نما وہ غنچہ دہن، ہے پھول پھول میں اس لالا فام کی خوشبو، زبان و دل میں درود و سلام کی خوشبو، تمام محفل احباب جھوم اٹھی اشرف، تمام